الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. رواہ مسلم. معزز سامعین و ناظرین، بھائیوں اور دوستوں، بزرگان دین اور دینی و ملی اخوان، آج 15 ستمبر 2020 آج کا کشف الشبہات کا یہ آخری درس ہے. اس آخری درس میں مشرکین کی طرف سے کیے گئے اعتراضات یا ان کے شکوک و شبہات کے 2 ازالے اور رکھے جائیں گے. اس سے پہلے بہت سارے شکوک و شبہات کا ازالہ آپ کے سامنے اس کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے، جس کتاب کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیا گیا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا. میں بھائی دوستو، پچھلے درس میں یہ بات میں نے آخر میں بیان کی تھی کہ مشرکین کا ایک اعتراض، ایک شبہ یہ بھی ہے کہ ہم جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو ہمیں مشرک گردانہ کیوں جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو پر بڑے سخت سست لفظ استعمال کیے تھے آپ نے، اور آپ نے تنبیہ فرمائی تھی کہ تم نے کیوں ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. اقتلتم بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کہ کیا تم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، تو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تم نے اسے قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خفگی کا اظہار کیا، اور زیادہ شدت کے ساتھ آپ نے خفگی کا اظہار کیا. حضرت اسامہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تو یہ تمنا اور آرزو کرنے لگا کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہیں بلکہ اب مسلمان ہوا ہوتا، یعنی یہ خطا مجھ سے سرزد نہ ہوئی ہوتی. میرے بھائیو دوستو، اسی طرح سے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کا راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی رب کی طرف سے اشارہ ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں، جنگ اور جہاد کروں، جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں. اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے معترض اعتراض کرتا ہے، یا آج کا مشرک یہ شبہ پیش کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کر لیں انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں انہیں مشرک نہیں کہا جائے گا. تو ذرا اس کا جواب میں نے اختصار سے دیا تھا، لیکن پھر میں ذرا اس کو واضح کرتا چلوں. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد آدمی جو بھی چاہے کرے ایسا نہیں ہے، جو بھی چاہے کرے ایسا نہیں ہے. حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے تو اب وہ جو چاہے سو کرے، اب اسے قتل نہیں کیا جائے گا. بات ایسی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا اقرار یہود کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے اس اقرار کے باوجود بھی آپ نے ان سے جہاد کیا، ان کے خلاف ان سے قتال کیا، ان کے خون اور ان کے مال کو سب کو مباح قرار دیا، ان کی عورتوں تک کو لونڈی بنا کر کے لایا گیا. تو کہنے کی بات یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار یہودی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس آپ نے ان سے قتال کیا. اسی طرح سے بنو حنیفہ کے لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، ارکان اسلام کا دعویٰ بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बाकायदा उनके ऊपर चढ़ाई की, उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया और क़ताल किया। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी तरह से वो लोग भी तौहीद का इकरार करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार और एतराफ़ करते थे, जिन्हें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आग के हवाले किया था। इसकी तफसील पिछले 2 दर्स में शायद आ चुकी है। इसी तरह से वो दूसरा जवाब देते हुए कहते हैं साहिब किताब कि ये लोग आखिरत के मुनकिर को या इस्लाम के किसी रुकन के मुनकिर को अगरचे वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता हो, काफिर और मबाहुद्दम मानते हैं। यानी एक शख्स अगर आखिरत का इनकार करे, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार भले करे, इसी तरह से अगर कोई शख्स इस्लाम के अरकान में से किसी रुकन का अगर वो इनकार करे, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार अगरचे करे, तो ये लोग भी जो एतराज़ करते हैं, जो शुबहा डालते हैं, वो लोग भी इस बात को मानते हैं कि ऐसा शख्स काफिर है, मबाहुद्दम है। तो सवाल ये है कि इस्लाम के किसी रुकन का, आम रुकन का इनकार करने वाला जब ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे तो कुफ्र से नहीं बच सकता, तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही का इनकार करने वाला या उसके ऊपर कदगन लगाने वाला या उसके अंदर खलल अंदाजी करने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार का क्या फ़ायदा पहुँचेगा, जबकि अंबिया के दीन की जड़ ही यही ला इलाहा इल्लल्लाह है। और उसका इनकार करने वाला फिर कुफ्र और शिर्क के दहाने से कैसे बच सकता है, कुफ्र और शिर्क के दलदल से वो अपना बचाव कैसे कर सकता है, जब इस्लाम के किसी रुकन का इनकार ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के बाद आदमी कुफ्र से नहीं बच सकता, उस पर कुफ्र का हुक्म लगेगा, उसका खून और माल मुबाह होगा। तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह जो असल तौहीद है, जो कलमे तौहीद है, जो कलमे तय्यबा है, जो तमाम अंबिया के दीन की जड़ है, उसका इनकार करने वाला क्यों कर अपने आप को कुफ्र के दामन से बचा सकता है। मेरे भाई दोस्तों, आगे लिखते हैं साहिब किताब, कहते हैं कि उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिस हदीस से मुशरिकीन दलील पकड़ते हैं, उसका जवाब यह है कि इस उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को उसके इस्लाम लाने का दावा करने के बाद भी ये समझ कर कत्ल कर दिया। गौर कीजिएगा, तवज्जो दीजिए, ये समझ कर कत्ल कर दिया कि उसके इस्लाम का दावा ये अपनी जान और माल के बचाव के लिए है। गलत फहमी उनसे हुई। उन्होंने क्या समझा कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार जो कर रहा है, ये अपने जान माल के बचाव और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकरार कर रहा है कि जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लूँगा तो मेरी जान और मेरा माल महफूज हो जाएगा। मेरे भाई दोस्तों, आदमी जब अपने इस्लाम का इजहार कर दे तो उससे हाथ रोक लेना ज़रूरी होता है उस वक्त तक। ये जुमला याद रखिएगा, एक इंसान, एक आदमी जब अपने इस्लाम का इजहार कर ले, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले, कलमा पढ़ करके इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाए, तो फिर उससे वक्ती तौर पर, फौरी तौर पर हाथ रोक लेना चाहिए। वही काम उन्होंने नहीं किया था। अलबत्ता याद रखिएगा ये जुमला, यहाँ तक कि उसके खिलाफ कोई बात साबित हो जाए, यानी जिस आदमी ने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, उस वक्त उससे हाथ रोक लिया जाएगा। लेकिन जब उससे कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसा अमल या कोई ऐसा फेल या कोई ऐसी बात साबित हो जाए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, तो फिर उससे हाथ रोका नहीं जाएगा। अब इसको समझाने के लिए साहिब किताब ने कुरान करीम की सूरह निसा की आयत नंबर 94 का पहला टुकड़ा पढ़ा है, जिक्र किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू, कि ऐ मोमिनो जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद में निकलो तो तहक़ीक़ कर लिया करो। अब यही नुक्ता ज़रा गौर कीजिएगा, मोमिनो जब तुम राह जिहाद में निकलो तो तहक़ीक़ कर लिया करो। अब ज़रा साहिब किताब समझाते हैं, कहते हैं यह आयत करीमा इस बात पर वाज़ेह सबूत है कि जो शख्स अपने इस्लाम का इजहार कर दे उससे हाथ रोक लेना और उसके बारे में तहक़ीक़ करना ज़रूरी है,
تحقیق کے بعد اگر اس سے کوئی ایسی بات ثابت ہو جو اسلام کے خلاف ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو تو نہیں قتل کیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اسلام کا اظہار کر دینے سے یا کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے بعد آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، آدمی کو قتل اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں اگر یہی مطلب ہوتا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا تو فوراً اس کو قتل نہیں کیا جائے گا کسی بھی شکل میں، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی کرے، جو بھی کرے، جیسا بھی کرے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اس آیت کریمہ میں تحقیق کرنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ بھئی جب تحقیق تو کی جائے گی کس معاملے میں؟ جو چیز واضح نہ ہو، اور ظاہر سی بات ہے یہاں اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار تو بھی کیا ہے، لیکن ابھی یہاں اس کی وضاحت طلب مسئلہ ہے کہ کیا واقعتاً یہ اسلام کا خوگر ہے یا یوں ہی بس۔ تو اگر اس کی کسی حرکت سے اسلام کے خلاف کوئی عمل، کوئی بات، کوئی قول، کوئی چیز ثابت ہو جائے تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد اب وہ جو چاہے سو کرے، اسے کھلی آزادی اور چھٹی ہے، ایسی بات نہیں ہے، ورنہ اللہ رب العزت تحقیق کرنے کا حکم نہ دیتا۔ میرے بھائیو دوستو، آگے لکھتے ہیں صاحب کتاب کہتے ہیں اس طرح کی دیگر یا اس موضوع یا اس عنوان کی دیگر جو احادیث لوگ پیش کرتے ہیں اس کا بھی مطلب یہی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں، جہاد کروں، جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، تو اس سے مشرکین یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد انسان کافر نہیں ہو سکتا، یا اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد اسے مشرک کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ قتال تو کرنے کا حکم اس سے دیا گیا ہے جو غیر مسلم ہے، اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے تک انہیں قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، یہاں بھی وہی مطلب ہے جو پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اور آگے دیکھیں، ایک بڑی اونچی بات بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں کہ یعنی جو شخص اسلام یا توحید کا اظہار کر دے اس سے ہاتھ روک لیا جائے گا، اور تحقیق کے بعد اگر اس کے اندر اسلام کے خلاف کوئی بات ثابت ہو جائے تو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ کیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تم نے اسے قتل کر دیا، اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے، اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے سلسلے میں یہ حکم دیا ہے، اینما لقیتموہم فاقتلوہم لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، کہ انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کر دو۔ خوارج کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت انداز میں گفتگو فرمائی ہے کہ انہیں تم جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کر دو، اور اگر میں نے ان کو پا لیا تو قوم عاد کی طرح میں بھی انہیں قتل کروں گا اگر میں نے انہیں پا لیا۔ اب ذرا آپ آئیے ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، یہ خوارج ہیں کون، ان کی ظاہری کیفیت کیا ہے، آپ سمجھیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ خوارج بہت زیادہ عبادت گزار تھے، بہت بڑے عابد و زاہد دیکھنے میں لگتے تھے، اللہ رب العزت کی تکبیر و تحلیل کرنے میں بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے، یہاں تک کہ بعض صحابہ ان کے ان اعمال کو دیکھ کر اپنے عمل کو کمتر سمجھنے لگتے تھے، یعنی ان کے اعمال بہت زیادہ تھے، لا الہ الا اللہ کے اذکار اور اسی طرح سے اس کا اقرار و اعتراف اور اسی طرح سے دیگر اذکار اور عبادات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے، اس قدر حصہ لیتے تھے کہ بعض صحابہ اپنے عمل کو ان کے عمل سے کم سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے اپنی نمازوں کو، اپنی عبادات کو۔ ان خوارج نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی حاصل کیا تھا، صحابہ کرام سے انہوں نے براہ راست علم حاصل کیا تھا، لیکن جب ان کی جانب سے شریعت کی خلاف ورزی سامنے آئی،
جب ان کی جانب سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دیگر اعمال اور افعال خیر جو ظاہری جو دین کے ہیں ان تمام چیزوں کو اس حد تک کر رہے ہیں کہ صحابہ کو رشک آ رہا ہے، وہ عش کر رہے ہیں کہ ہماری نمازیں تو ان کے مقابلے میں کم ہیں، اور یہ ان سے علم بھی حاصل کرتے تھے، لیکن جب ان کے اعمال، ان کے کرتوت خلاف شریعت پائے گئے تو پھر یہی صحابہ ہیں جو ان کی نمازوں کو، ان کی عبادات کو اپنی عبادات کے مقابلے میں اعلیٰ سمجھتے تھے، ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور باقاعدہ ان سے جنگ کیا اور جہاد کیا، اور پھر ایسے لوگوں کو قتل بھی کیا۔ تو کہنے کی بات یہ خوارج کا جو انجام ہوا وہ ہم اور آپ کے سامنے ہے، ان کی ظاہری زندگی کیا تھی وہ بھی آپ کے سامنے رہی ہوگی یا اب سامنے آ گئی ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے جو قتال کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے پیچھے بات آ چکی ہے، پچھلے درس میں بھی ابھی میں نے تذکرہ کر دیا ہے۔ تو اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بنو حنیفہ سے قتال یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے۔ تو یہ سب سارے دلائل اس بات کی واضح ثبوت ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا یہ کسی انسان کے لیے، مسلمان اور مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار اور پھر اس کے تقاضوں پر مکمل کھرا اترنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرے لیکن اسلام کے خلاف اس کے اعمال ہوں، اس کے کرتوت ہوں، تو پھر اس کا اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ نہیں دکھتا، اور اس دنیا یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو وہاں بھی اس کا کوئی فائدہ سمجھ میں سامنے نہیں آئے گا۔ میرے بھائی دوستو، پھر صاحب کتاب نے خبر کی تحقیق کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک بات یہاں ذکر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اس واقعے پر بھی ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ بنو مستلق کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ یہ بات غیر حقیقی تھی، مناسب نہیں تھی، بات میں سچائی نہیں تھی، لیکن آپ کو جب یہ خبر دی گئی کہ بنو المستلق کے لوگوں نے جو اسلام قبول کر چکے تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں تھی، حقائق سے بالکل اس کا ٹچنگ نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے لیکن زکوٰۃ نہ دینے کی غلط خبر سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کا ارادہ فرمایا۔ اسی موقع پر اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل کی سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مومنو جب تمہارے پاس کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، اس کو جانچ پرکھ لیا کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تحقیق کرنے کے توسط سے پوری امت کو یہاں درس دیا جا رہا ہے کہ تحقیق ضروری ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا وہ کون لوگ تھے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو یہ درس بھی دیا گیا کہ تحقیق بھی از حد ضروری ہے، کیونکہ اگر آدمی تحقیق نہیں کرے گا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے بوجھے بغیر کسی قوم پر چڑھ دوڑو پھر اپنے کیے ہوئے کام پر نادم اور پچھتانا پڑے۔ میرے بھائی دوستو، تو اس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ بنو مستلق کے متعلق جو اطلاع ملی تھی وہ اطلاع جھوٹی تھی، صحیح نہیں تھی۔ بہرحال یہ تمام واقعات لمبا چوڑا واقعہ ہے، وہ آپ جس کو اس کی تفصیل چاہیے وہ سورہ حجرات اٹھائے اور اس میں پڑھے، وہاں اس کی تفاصیل میں جا کر کے غور و فکر کرے، اسے بہت لمبی چوڑی گفتگو ملے گی۔ تو بہرحال ان تمام واقعات سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ مشرکین نے جن احادیث سے دلیل پکڑی ہے ان کا صحیح مطلب وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اب آئیے ایک دو شبہ میں آپ کے سامنے اور رکھوں گا جو آخری ہے، بلکہ آخری
आखिरी 2 शुबहे आपके सामने रखे जाएंगे जो इसी पर किताब ख़त्म हो जाएगी। तो आखिर से पहले वाला शुबहा है वो ये कहते हैं, मुशरिकीन को एक शुबहा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के दिन लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास इस्तिग़ासा के लिए जाएंगे, यानी फरियाद करेंगे, फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, फिर हज़रत मूसा से होते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास इस्तिग़ासा के लिए जाएंगे, फरियाद के लिए जाएंगे, और सब के सब माज़रत कर देंगे। वो जिसको हम हदीस शफ़ाअत के नाम से जानते हैं, लंबी चौड़ी हदीस है। हदीस की तकरीबन सारी किताबों में ये हदीस शफ़ाअत मिलती है और आप शायद सुने भी हों। कह रहे हैं कि सब के सब माज़रत पेश कर देंगे, यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला लेकर के लोग पहुँचेंगे। मुशरिकीन अब यहाँ क्या कहते हैं? मुशरिकीन कहते हैं, जो ये आज के नाम नहाद मुशरिकीन, नाम नहाद मुसलमान जो हकीकत में मुशरिक हैं, उनके आमाल मुशरिकाना हैं, उनके अकायद और सोच मुशरिकाना हैं, और उनके जो आमाल हैं खुसूसन इबादत के ताल्लुक़ से, तो वो या तो मुकम्मल तौर पर शिरक अकबर के मुर्तकिब हैं या शिरक असगर के मुर्तकिब हैं, और उमूमन ये शिरक अकबर के मुर्तकिब हुआ करते हैं। बहरहाल मुशरिकीन ये कहते हैं, ये जो मुशरिकीन हैं, मुशरिकीन कहते हैं कि गोया गैरुल्लाह से इस्तिग़ासा करना शिरक नहीं है, गोया गैरुल्लाह से इस्तिग़ासा करना शिरक नहीं है। ये मुशरिकीन का शुबहा है, ये मुशरिकीन का शुबहा है। ये इतराज़ का जवाब देते हुए वो एक बात पेश करते हैं कि हम मुशरिक नहीं हैं, क्योंकि गैरुल्लाह से इस्तिग़ासा करना ये शिरक नहीं है। अगर ये शिरक होता तो फिर ये लोग सारे के सारे लोग मैदान महशर में वहाँ जब इकट्ठा होंगे तो हिसाब व किताब के लिए, कि हिसाब व किताब जल्दी हो, ताकि जो अहले जन्नत हैं वो जन्नत में जाएँ और इन मुसीबतों से छुटकारा पाएँ, तो उसके लिए वो हज़रत आदम के पास जाएंगे, नूह के पास जाएंगे, इब्राहीम के पास जाएंगे, मूसा और ईसा के पास जाएंगे, और फिर सब के सब जब मदद कर देंगे, आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचेंगे अलैहिस्सलातु व तस्लीम। तो इस वाक़े से मालूम होता है कि गैरुल्लाह से इस्तिग़ासा करना शिरक नहीं है। ये है शुबहा। आइए जवाब सुनते हैं। कहते हैं इसका जवाब ये है कि मखलूक से उस काम में इस्तिग़ासा के हम मुनकिर नहीं हैं जो उसके बस में हो। ज़रा फ़र्क समझिएगा, एक होता है कि इंसान के बस में किसी काम का होना, और एक होता है इंसान के बस से बाहर होना। उसी को माफ़ोक़ल असबाब मा तहतल असबाब कहते हैं। माफ़ोक़ल असबाब यानी जो उसके बस से बाहर हो, और मा तहतल असबाब जो उसके बस में हो, जो उसके बस में हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम यहाँ साहिब किताब कह रहे हैं कि हम उस इस्तिग़ासा के मुनकिर नहीं हैं जो इंसान के बस में हो, जो इंसान के बस में हो। आइए उसकी वो आगे दलील खुद देते हैं कि हम भी उस इस्तिग़ासा को मानते हैं जो इंसान के बस में हो। कुरान में सूरह क़सस के अंदर आयत नंबर 15 का एक टुकड़ा है। अल्लाह फरमाता है कि फ़स्तग़ासहुल्लज़ी मिन शियअतिही अलल्लज़ी मिन अदुव्विही, कि जो मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो के कौम का एक आदमी था, उसने हज़रत मूसा को बतौर इस्तिग़ासा पुकारा, यानी फरियाद के लिए उन्हें पुकारा। उस कौम के मुकाबले में उस आदमी के ख़िलाफ़ जो हज़रत मूसा की कौम का दुश्मन था, यानी अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ अपने मानने वाले और अपने हमनवा नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पुकारा बतौर इस्तिग़ासा, बतौर फरियाद के। साहिब किताब ने इस आयत को कोट किया है कि जो मूसा का हम कौम था, उसने उस शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मन गिरोह में था, मूसा से मदद चाही अलैहिस्सलातु व तस्लीम। मेरे भाई दोस्तों, हज़रत मूसा वहाँ मौजूद थे और उस मदद करने के काबिल और लायक थे, कुदरत थी। आगे कहते हैं, या जिस तरह से इंसान जंग वगैरह में अपने साथियों से उन उमूर में इस्तिग़ासा और फरियाद करता है या मदद चाहता है जिन पर इंसान कादिर होता है, ताकत रखता है, उसके बस में होता है, हम तो इस इस्तिग़ासा का इनकार करते हैं जो बुज़ुर्गों की कब्रों पर जाकर इबादत की शक्ल में किया जाता है, या गायबाना तौर पर उनसे उन चीज़ों का सवाल होता है जो अल्लाह के सिवा किसी के अख्तियार में नहीं होता। अब ज़रा फ़र्क समझिए, जो चीज़ें इंसान के बस में हो और वो इंसान आपके सामने हो,
उन चीज़ों का इस्तिग़ासा करना, फरियाद करना, मदद चाहना, मांगना, तलब करना, ये इस्तिग़ासा वो इस्तिग़ासा नहीं है जिसे शिर्क कहा जाता है, और ना इसका कोई मुनकिर है। मुनकिर उस इस्तिग़ासा का है, उस मदद तलब करने का है, उस फरियाद का है जो इंसान के बस से बाहर हो। यानी एक इंसान अगर दूसरे इंसान से, जिंदा हाजिर इंसान से, जिसके बस में कुदरत में वो चीज़ है, उससे अगर फरियाद करता है तो ना ये अकीदे के ख़िलाफ़ है और ना ही कोई इसी चीज़ का इनकार करता है। अलबत्ता अगर गायबाना तौर पर अगर कोई शख्स किसी पीर से, किसी फ़कीर, किसी वली से, किसी बुज़ुर्ग से जो वफ़ात पा चुके हों, जो सामने हाजिर ना हों, बहुत दूर हों, अगर ज़िंदा भी हों, वो इतने दूर हों जहाँ तक आप अपनी आम तौर पर आवाज़ नहीं पहुँचती, ऐसे गायब पीर, मुरीद, फ़कीर, मुर्शिद को पुकारना या इसी तरह से मुर्दा पीर, फ़कीर, मुरीद को पुकारना जो उसके बस से बाहर है, ज़ाहिर सी बात है, तो ये इस्तिग़ासा, ये फरियाद शिर्क है, बल्कि शिर्क अकबर है। हम इसके इनकारी हैं और यही वाक़तन शिर्क अकबर है। मैं भाई दोस्तों कहते हैं कि इस तफसील के बाद मज़कूरा यानी जो हदीसें जो ज़िक्र की गई हैं, इस तफसील के बाद ज़िक्र की गई हदीसों की तरफ आएँ जिसे मुशरिकीन बतौर दलील पेश करते हैं। इस हदीस से अम्बिया से इस्तिग़ासा की तफसील ये है। अब ज़रा समझिए, जो हदीस वो पेश करते हैं हदीस शफ़ाअत की गैरुल्लाह से, यानी अम्बिया से लोग फरियाद करेंगे कि वो सिफारिश करें, तो गोया कि गैरुल्लाह से सिफारिश करना ये आयब नहीं है, ये शिरक नहीं है। और अगर ये शिरक होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मना कर देते और बल्कि उसकी वजाहत नहीं करते। तो साहिब किताब कहते हैं कि इस हदीस से जो हदीस से ये मसला मुस्तंबत करते हैं, जो शुबहा पैदा करते हैं, उस हदीस से इस्तिग़ासा की तफसील ये है कि क़यामत के दिन लोग अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के पास आकर ये दरख्वास्त करेंगे, अम्बिया के पास आकर दरख्वास्त करेंगे। ज़रा गौर कीजिए नुक्ता, अम्बिया के पास जाएंगे, हज़रत आदम के पास जाएंगे, हज़रत नूह के पास जाएंगे, इब्राहीम के पास जाएंगे, मूसा के पास जाएंगे, ईसा के पास जाएंगे, सब मदद कर देंगे अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, उनके पास जाएंगे तो उनके पास आकर दरख्वास्त करेंगे कि वो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें। उनके पहली बात तो ये है कि उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द से जल्द हिसाब व किताब शुरू करे ताकि जन्नती हजरात मैदान हश्र की सख्तियों से निजात पा सकें। तो ये जो इस्तिग़ासा करेंगे हजरत अम्बिया से, हालांकि सब ने माज़रत भी कर ली, तो वो इस चीज़ की नहीं करेंगे कि आप हिसाब शुरू करो, वो कहेंगे कि आप अल्लाह से दुआ करो कि वो जल्द से जल्द हिसाब किताब शुरू करे ताकि अहले जन्नत इस सख्तियों से अपने आप को बचा सकें। पर दूसरी बात, तीसरी बात देखें, जाहिर बात है कि इस किस्म का इस्तिग़ासा दुनिया में भी जायज़ है और आखिरत में भी जायज़ है। आप सामने किसी आदमी से, किसी शख्स से कोई ऐसी चीज़ का मुतालबा करें, कोई ऐसी फरियाद करें, कोई ऐसी चीज़ तलब करें, कोई ऐसी चीज़ मांगें जो उसके बस में हो, आपके सामने हो, कोई हर्ज की बात नहीं। दुनिया में भी ये जायज़ है, आखिरत में भी जायज़ है। आगे वो कह रहे हैं कि आप किसी नेक और ज़िंदा शख्स के पास जाएं जो आपके पास बैठकर आपकी बातें सुने और उससे दरख्वास्त करें कि मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए, जायज़ है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सहाबे किराम आपके पास आते और दुआ की दरख्वास्त करते थे, लेकिन आपकी वफ़ात के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सहाबी ने सहाबे किराम में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास आकर के दुआ की हो या दुआ की दरख्वास्त की हो, बल्कि सलफ़े सालेहीन तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जा कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करना भी मना करते हैं। सलफ़े सालेहीन दुआ करना मना करते हैं कि कब्र नबवी के पास जाकर के दुआ की जाए। कब्र नबवी के पास जाकर के अल्लाह से दुआ करने से भी सल्फ़े सालिहीन मना करते हों, तो फिर आप बताएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात पा जाने के बाद आपकी कब्र के पास जाकर के मांगना, सवाल करना या इसी तरह से मुतालबा करना, कोई चीज़ और करना, हायत रवाई मुश्किल कुशाई के लिए आपको पुकारना, ये कैसे सहाबे किराम से जायज़ साबित हो सकता है और कैसे ही मुमकिन था। मेरे भाइयों दोस्तों, आगे कहते हैं अब सही तौर पर एक और सुबह। तो इस सुबह का खुलासा ये निकला कि जो हदीस शफ़ाअत है उसमें गैरुल्लाह से जो इस्तिग़ासा है
पहली बात तो यह है कि उनके सामने जाएंगे, उनसे कहेंगे और उनसे इस्तिग़ासा जो करेंगे दुआ का करेंगे कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि हिसाब व किताब जल्द शुरू हो जाए, पहली बात। दूसरी बात यह याद रखें कि ये चीज़ यानी सामने जा कर के और जो काम उसके बस में हो वो चीज़ दुनिया में भी जायज़ है, वो चीज़ आखिरत में भी जायज़ है, तो इसका कोई इनकार नहीं करता। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा ने भी आपकी कब्र के पास जाकर के कभी आपसे इस्तिग़ासा नहीं किया। हालांकि बड़े से बड़े मसाइल आए, बड़े से बड़ी संगीन अय्याम से दो चार हुए और संगीन हालात से उन्हें निमट आज़मा होना पड़ा, तो कहने की बात यह है कि उसके बावजूद भी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास जाकर के आपसे कभी इस्तिग़ासा नहीं किया। और आपको बताया कि ऐसा भी सलफ़े सालिहीन करने से मना करते हैं कि कोई आदमी कब्र नबवी के पास जाकर अल्लाह से डायरेक्ट दुआ करे और जाए सिर्फ कब्र नबवी के पास बतौर तबर्रुक, तो ये भी मुनासिब नहीं है, ये भी तौहीद के ख़िलाफ़ है, तौहीद पर आँच आएगी इससे। तो मेरे भाई दोस्तों, अब आखिरी जो सुबह इस साहिब किताब ने जो जिक्र किया है उसको सुने। कहते हैं मुशरिकीन का एक शुबहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वो वाक़या है जो नमरूद ने उन्हें आग में डाला था। खुलासा कहते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आग में डाला जाने लगा तो जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम हाजिर हुए और उन्होंने पेशकश की कि अगर कोई ज़रूरत हो मुझसे तो बताएं, यानी अगर मेरी कोई ज़रूरत आपको हो तो मुझे बताइए, मैं खुद पेशकश करता हूँ। हज़रत जिब्रील आए, पेशकश की कि अगर वो तो बताएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तौहीद के इमाम और शिर्क के ख़िलाफ़ ऐसा डट कर खड़े हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनकी ये अदा बहुत भाई। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ अन तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि आप इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मिल्लत की पैरवी कीजिए। तौहीद पर डटना और शिर्क की मुखालफत जिस अंदाज से खुले सीने के साथ और हिम्मत और हौसले और वलवले के साथ जो आपने किया है, वो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको सराहा और क़यामत की सुबह तक के लिए आपका जिक्र खैर कुरान में छोड़ रखा है। मेरे भाई दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जवाब दिया कि आपसे तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इस वाक़े को लेकर आपसे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और देखें और किस हालत से दो चार हो रहे थे, आग में डाला जाना है और आग की जो कैफियत है वो अपनी जगह, एक आग अगर छोटी मोटी ही क्यों ना होती, मतलब एक महदूद दायरे में, तब भी इंसान को जलाने के लिए काफ़ी थी। इस संगीन नाजुक मौके पर जिब्रील अमी आकर के पेशकश कर रहे हैं कि अगर कोई मेरी ज़रूरत बताइए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इस वाक़े को लेकर मुशरिकीन ये कहते हैं कि जब जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इस्तिग़ासा मदद चाहना शिर्क होता, अगर शिर्क होता, इस्तिग़ासा चाहना शिर्क होता, तो ख़ुद जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ये पेशकश ना कर दे। यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ये पेशकश करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ये दलील है इस बात की कि गैरुल्लाह से इस्तिग़ासा किया जा सकता है। अब ये मारे घुटना फूटे सर वाली बात है। बहरहाल अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूरी वाली बात है। बहरहाल कहते हैं ये सुबह दर हकीकत पहले वाले सुबह जैसा है, अभी जो बयान किया गया है। आगे कहते हैं और उसका जवाब भी वही है कि जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस चीज़ की पेशकश की थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जिस पर वो कादिर थे। अब दलील सुनिए। कह रहे हैं जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नज्म में कहा है अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, सख्त क़ुव्वतों वाला, शदीदुल क़ुवा। अब अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील को अगर ये ताकत व क़ुव्वत, ये कुदरत दी है, उस कुदरत को सामने रखते हुए अगर वो अपने सामने वाले को कोई पेशकश करें कि अगर मेरी खिदमत हो तो मुझे बताएं, मैं इस चीज़ पर कादिर हूँ, तो ये कहाँ और कहाँ कब्रों में मनोमन मिट्टी के नीचे मौजूद शख्स
जिसको अपने हालत की भी शायद खबर ना हो कि उसकी कब्र पर आकर के क्या क्या लोग कर रहे हैं, और कभी कभी वो हैवानात भी वहाँ पहुँचते हैं, और कितनी कब्रें खोद ली जाती हैं और मुर्दे को उठा लिया जाता है, हालांकि जिस कब्र वाले को लोग पीर फ़कीर और मुरीद और मुर्शिद समझते हों। अब आप बताएं कहाँ वो वाक़या, कहाँ उनकी ये हरकतें, कहाँ ये वाक़या। इसलिए मैंने कहा कि मारे घुटना फूटे सर। तो मेरे भाई दोस्तों कह रहे हैं कि इसलिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम को इस बात की आयत दे देता कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग और उसके इर्द गिर्द जो ज़मीन व पहाड़ थे उन सब को उठाकर मशरिक़ या मगरिब में ले जा कर के रख दें, या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसी दूर मकाम पर छोड़ आएँ या उठा कर के आसमान पर पहुंचा दें, तो यकीनन ये सब कुछ वो कर सकते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इतनी दस्तरस उन्हें दी थी, इतनी ताकत व क़ुव्वत दी थी। तो अब इन ताकत व क़ुव्वत की बुनियाद पर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हुक्म दे देता तो वो उठा करके सब सारा काम कर सकते थे, तो उनकी कुदरत में था। अब ज़ाहिर सी बात, अब इसको मिसाल दिया है, जैसे कोई मालदार शख्स किसी ज़रूरतमंद के पास पहुँचे और कहे कि मैं तुम्हें कुछ कर्ज देना चाहता हूँ तुम्हारी इस गुर्बत को देखते हुए, या मैं तुम्हें तुम्हारे साथ कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, या तुम्हारी हेल्प और मदद करना चाहता हूँ, या यूँ ही कुछ देना वो चाहे जिससे वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। यानी कोई मालदार किसी गरीब के पास खुद जाए और कहे कि तुम्हारी गुर्बत की वजह से मैं तुम्हें सदका देना चाहता हूँ, या हदिया देना चाहता हूँ, या कर्ज देना चाहता हूँ, या यूँ ही कुछ देना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है ये देना और वो देना दोनों फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। अब कहते हैं और ये ज़रूरतमंद शख्स अगर लेने से इनकार कर दे और वो सब्र ही को तरजीह दे कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं जिस हाल में हूँ उसी में रहूँगा और सब्र करूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या तो खुद ही कोई इंतज़ाम कर दे ताकि मुझ पर किसी का एहसान ना हो, तो वो एहसान से बचते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर सब्र करते हुए अपने आप को इसी हाल में रखे, और इस उम्मीद के साथ कि शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे हाल को भी दुरुस्त कर दे। तो कहने की बात यह है कि वहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम का पेशकश करना ऐसे ही है जैसे किसी मालदार का किसी गरीब के सामने अपने माल के देने की पेशकश करना है। अब ये गरीब आदमी माल को ले या ना ले उसकी मर्ज़ी। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनकी खिदमत को और उनकी पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया। मेरे भाई दोस्तों आगे साहिब किताब तौहीद की अमली तत्बीक करते हैं और मैं नहायत ही इख्तिसार से ये बात पेश कर दूँ। पहली बात तो ये है, कहते हैं कि इस रसाला के ख़ात्मे पर हम एक इंतहाई मसला ज़िक्र कर देना चाहते हैं। चूँकि ये मसला नहायत ही नाजुक मसला है और लोग कसरत से इसमें गलती कर बैठते हैं, इसलिए इलाहिदा तौर पर उसका बयान कर देना ज़रूरी समझते हैं। अब वो क्या है, कहते हैं इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि तौहीद का दिल, ज़ुबान और अमल तीनों से बैक वक्त ताल्लुक़ है। तौहीद का ताल्लुक़ ज़बान से, दिल से और अमल से, तीनों से बैक वक्त है, इस बात पर सबका इत्तेफाक है। कहते हैं इनमें से अगर किसी एक चीज़ के अंदर भी खलल वाक़ हुआ तो आदमी मुसलमान नहीं रहता। कोई शख्स अगर तौहीद को समझता है मगर उसके मुताबिक अमल नहीं करता तो वो फ़िरऔन और इबलीस वगैरह की तरह से सरकश काफिर है, क्योंकि तौहीद को समझने की जहाँ तक बात है फ़िरऔन भी समझता था। कुरान में जो वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा, ये तो जुल्म की वजह से और जो है किब्र और गुरूर और घमंड में आने की वजह से उसने बातों को नहीं माना और उलूहियत का इकरार नहीं किया, बल्कि खुद ही गुरूर में आकर के अपने को रब्बुकुमुल आला की सदा लगाने लगा। तो कहने हैं कि इबलीस को भी इस बात का पता था तौहीद का, फ़िरऔन को भी पता था इस बात का, लेकिन पता होने के बावजूद जब तौहीद के मुताबिक इंसान अमल ना करे तो फिर उसका अंजाम या वो बिल्कुल फ़िरऔन और इबलीस जैसा है। कहते हैं इस बारे में बहुत से लोग गलतफहमी में मुब्तला रहते हैं। कहते हैं कि हम जानते हैं कि फला बात हक़ है, हम उसका इकरार भी करते हैं। कभी कभी आप देखे हैं कुछ लोग इस बात को जानते भी हैं, मानते भी हैं, इकरार भी करते हैं कि फ़ला बात हक़ है और उसका इकरार भी करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते।
क्यों नहीं करते? अपने इलाका के लोगों की मुखालफत से बचने के लिए, या इसी तरह से और कोई उधर लंग पेश करते हैं कि माहौल है, फिर माशरा है, फिर लोग क्या कहेंगे, फिर ख़ानदान है, फिर ये जो रिश्तेदारियाँ हैं, सब बड़े बड़े मसाइल हैं, हो सकता है लोग मारें पीटें भी, हो सकता है तो को करें, परेशान करें, और दीगर सोशल बाइकाट भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इन तमाम वजूहात या इन तमाम उधर को पेश करके अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो वो बहुत बड़ी गलती पर है। वो कहते हैं कि शायद वो नहीं जानता कि काफिरों के बड़े बड़े सरदार भी हक़ को पहचानते थे, और इसी तरह से के हीले बहाने में पढ़ करके उन्होंने हक़ को छोड़े रखा। जैसा कि अल्लाह खुद फरमाता है, इस तरह भी आयातिल्लाह सबन कलीला, कि इन्होंने अल्लाह की आयत को थोड़ी सी कीमत में बेच दिया। और दूसरी जगह फरमाया, और यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही पहचानते थे जिस तरह से वो अपने बेटों को पहचानते थे। तो मालूम ये हुआ कि वो हक़ को जानते थे, उसका कहीं न कहीं वो एतराफ़ भी करते थे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, अमल पैरा होने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए अगर आज का मुसलमान इन तमाम चीज़ों को माने और उसका इकरार करे, लेकिन अगर वो समाज और माहौल और माशरे में की जद में आते हुए या उससे बचने के लिए अगर इसका इस इकरार के मुताबिक अमल नहीं करता, तो फिर ऐसे शख्स का भी अंजाम बड़ा भयानक और ख़तरनाक है। इसी तरह से मेरे भाई दोस्तों कहते हैं कि अगर कोई शख्स तौहीद को समझे बगैर दिल में ईमान रखे बगैर, समझे बगैर या दिल में ईमान रखे बगैर सिर्फ ज़ाहिर में तौहीद पर अमल करता है, तो ऐसा शख्स मुनाफिक है, जो काफिर से भी बदतर है। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के निचले दर्जे में होंगे। कह रहे हैं कि ये मसला इंतहाई अहम भी है और तवील भी है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको उस वक्त होगा जब इस सिलसिले में लोगों की बातों पर गौर करेंगे। यानी जब माहौल और मुआशरे में जाएंगे तो तरह तरह की लोग बातें करेंगे, वो तौहीद को मानेंगे, तौहीद समझाएंगे तो उनकी समझ में आएगी भी, लेकिन जब अमल की बात आएगी तो मुख्तलिफ हीले, मुख्तलिफ बहाने, मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ दुनिया भर की बातें करेंगे। कह रहे हैं चुनांचे बाद लोग तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जो हक़ को तो पहचानते हैं, लेकिन दुनियावी जाहो मनसब और जानो माल के कम हो जाने के डर से उस पर अमल नहीं करते। उनसे अगर पूछा जाए कि तौहीद के बारे में आपका क्या अकीदा है, तो उसका कोई इल्म उनके पास नहीं होता। लिहाजा ऐसी सूरत में कुरान करीम की दो आयतें ख़ास तौर से उन्हें अपने सामने रखना चाहिए। एक तो ये है कि ला तअतदरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, कि बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाकर ईमान का दावा करके फिर काफिर हो चुके हो। ये एक मुकम्मल बहस है। ये ग़ज़वे तबूक के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा करके जंग में, जिहाद में मौजूद जो लोग थे, उसमें से मुनाफिकीन, उन्होंने जंग में भी हिस्सा लिया है और वहाँ गए हैं, लेकिन कुछ बातें उन्होंने सहाबे किराम में जो कुर्रा थे उनके ख़िलाफ़ कुछ बातें की थी। उन बातों को की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस ऐलाने ईमान के बावजूद भी उन्हें काफिर कहा ला तअतदरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। इसी तरह से दूसरी आयत करीमा का टुकड़ा उन्होंने पेश किया कि मन कफ़र बिल्लाहि मिन बाद ईमान ही, जो शख्स ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ कुफ्र करे, वो नहीं जो कुफ्र पर मजबूर किया जाए। यानी जो लोग कुफ्र पर मजबूर किए जाएं उनको छोड़ करके जो लोग यूं ही बगैर मजबूर किए हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाएं, लेकिन वो फिर भी कुफ्र कर जाएं, यानी तौहीद में तौहीद का ख़ास ख्याल ना रखें और तौहीद की धज्जियाँ उड़ाते रहें, तो ऐसे लोगों को भी इस आयत करीमा को अपने सामने रखना चाहिए। कह रहे हैं इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने सिर्फ उस शख्स को काबिल माफ़ी बताया है जिसे कुफ्र पर मजबूर कर दिया गया हो, मगर उसका दिल ईमान पर जमा हुआ हो। उसके अलावा बाकी सारे लोग काफिर हैं, खा उन्होंने डर की वजह से कुफ्र का कलमा अपनी ज़ुबान से निकाला हो, या किसी की दिलजोई की खातिर निकाला हो, या वतन या अहलो अयाल या मालो मता की मोहब्बत में कुफरिया बात की हो, या कुफरिया अकीदे रखे हों, या कुफरिया आमाल कर रहा हो, या मजाक के तौर पर हो, या किसी और मकसद के तहत हो, बहरहाल वो काफिर शुमार होंगे, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयत करीमा में वजाहत की है। मेरे भाई दोस्तों, यहाँ तक उन्होंने जिक्र करने के बाद आगे कहते हैं
کہ इस आयत करीमा से दो बात मालूम होती है। एक तो ये है कि जिसे कुफ्र पर मजबूर कर दिया जाए, इस जुमले से साबित होता है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ मजबूर किए गए शख्स के कुफ्र को मुस्तस्ना करार दिया है, यानी जो मजबूर किए गए हैं सिर्फ उनका कुफ्र नहीं माना जाएगा। लेकिन जो लोग मजबूर नहीं किए गए और उसके बावजूद वो तौहीद के साथ मरगश्ती करते रहे, खिलवाड़ करते रहे, तो उनके कुफ्र में कोई शुबहा नहीं होगा। और ये सब जानते हैं कि इंसान को सिर्फ ज़बान या अमल पर मजबूर किया जा सकता है, दिली एतकाद पर कोई भी शख्स किसी को मजबूर नहीं कर सकता। यानी जब किसी शख्स को कोई मजबूर करेगा तो वो ज़ुबान से कहलवाएगा, ज़ाहिर सी बात है, वो अमली तौर पर कोई काम करवाएगा, लेकिन दिल पर किसी का कोई जबर नहीं होता। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस शख्स के दिल में तौहीद घर कर जाए उसको मजबूर करके ज़ुबान से तो कलमे कुफ्र कराया जा सकता है, कहलाया जा सकता है, अमली तौर पर कुछ काम कराए जा सकते हैं, लेकिन दिल उसका हमेशा उस चीज़ पर जमा हुआ होगा, तौहीद पर। अब जो मजबूरी के वक्त में जिसका दिल तौहीद पर जमा हो, तो बगैर मजबूरी के औकात में तौहीद से खिलवाड़ कैसे कर सकता है। दूसरी बात कहते हैं कि उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ने फरमाया कि ज़ालिका बिअन्नहु मुस्तहब्बुल हयात दुनिया अल आखिरह, ये इसलिए होगा कि इन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के मुकाबले में पसंद किया है। यानी जो मजबूर ना हो उसके बावजूद इस तरह से तौहीद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उन्होंने दुनियावी ज़िंदगी को उखरवी ज़िंदगी पर तरजीह दी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने इशारा फरमा दी कि ये कुफ्र और अदाब, ये एतकाद या जहालत या दीन से नफरत या कुफ्र की मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से होगा कि उसके अंदर उन्हें दुनिया की लज्जत नज़र आई जिसको उन्होंने आखिरत पर तरजीह दी। यानी आखिरत पर तरजीह देते हुए, यानी आखिरत को उतना अहम नहीं समझा, दुनिया के इन तमाम झमेलों को सामने रखते हुए, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए वो तौहीद से खिलवाड़ करते रहे, तौहीद के तकाज़े से मुंह फेरते रहे। तो कहने की बात यह है कि इन दोनों आयत करीमा को हमें आखिर में जो पेश की गई हैं उन्हें भी सामने रखना चाहिए। और उन्होंने आखिर में दुआ की है कि वल्लाहु सुब्हानहु व तआला आलम वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाह हमने जो ये दुरूस दिए हैं, इन तमाम दुरूस में कही गई बातों को समझने की तौफीक दे और इन समझकर हमें अपने तौहीद के तकाज़ों को भी समझने की तौफीक दे और तौहीद के तकाज़े पर खरा उतरने की तौफीक दे। अल्लाह हमें तौहीद पर कायम रखे, तौहीद पर जमा के रखे, तौहीद पर साबित कदम रखे। मौला जब तक रखे तौहीद पर रखे, जब उठाए तो हालते तौहीद पर उठाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।